Dear students, welcome to your 17th lecture of atomic structure. Today's topics are spin angular momentum, number of electrons and orbitals in a subshell, number of electrons and orbitals in a shell, nodes and nodal plane, shape of orbitals. इनके बारे में हम लोग बात करेंगे. हम लोग पढ़ चुके हैं. Their quantum numbers are 4 types. Principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, spin quantum number. हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बात की थी. किसी शेल में व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? लोगों ने पढ़ा था mvr is equal to h upon 2 pi, a total multiple of h. That is the angular momentum is equal to in a shell is h upon 2 pi. Clear? ये हम लोगों ने पढ़ा था NH upon 2 pi. In the same way, angular momentum of electron in a subshell, उसके लिए जो डिफरेंट फॉर्मूला था आपका ये था h upon 2 pi root L plus. अब पढ़ना है हम लोगों को स्पिन एंगुलर मोमेंटम. Your next coming topic is spin angular momentum. Actually, it is related with the spin. The spin angular momentum is equal to h upon 2 pi root s plus 1 in this way. Or you can write in this way, h operator root s plus 1. You know h operator is equal to h upon 2 pi. So h bar पढ़ते हैं हम लोग. It is equal to h upon 2 pi and it is called Planck's operator. It is called Planck's operator. Clear? Now you know what is the value of positive values of s? There are only two values, plus half or minus half. Clear? We take here numerical value. Then what comes value? H upon 2 pi root 1 upon 2 plus 1. Clear? You solve to it. It comes h upon 2 pi root 3 upon 2. This is the angular momentum. ठीक है ना? वो भी कौन सा? स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन within an orbital. Within an orbital. Another topic. There are number of electrons and orbitals in a subshell. You know number of orbitals in a shell. In a subshell. Subshell means smaller. That is azimuthal quantum number. It is equal to 2L plus 1. In the same way, number of electrons in a subshell may be नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ध्यान रखिए मैक्सिमम होंगे. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज इक्वल टू ट्वाइस 2L plus 1. That is 4L plus 2. You know, maximum 2 electrons can exist in an orbital of opposite spin. तो एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. तो जितने ऑर्बिटल्स होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. It comes 4L plus
पिक्चर को हम लोग एक टेबल से देखते हैं और समझते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली. Now we take an sharp cells. There you know 4 types: S, P, G, and F. Clear? Sharp cells. You know the value of L for S subshell. What is the value? पढ़ चुके हैं पीछे हम लोग. जरा रिवाइज करिए और बताइए क्या होगी. 0. There will be 1, 2 and clear. Now the number of orbitals. Clear? What is the value? 2l plus 1. जरा l की वैल्यू पुट करिए, कितना आ गया? 1. 1 वैल्यू पुट करिए, कितना आ गया? 3. There 5. There 7. Clear? Now number of electrons. कितना था? 4l plus 2. Put the value of L. There comes 2. There comes 6. There 10. There 14. इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? You write S2. Don't say S power 2. ठीक, ये मैक्सिमम नंबर है, ध्यान रखेंगे. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो पॉसिबल. क्लियर? दे आर, यू राइट P6. इनका सिंबल है D10, F14. It means in a d orbital can exist maximum, in d subshell can exist maximum 10 electrons, not more than 10. D11 is not possible. D9 हो सकता है, D1 हो सकता है, ठीक है ना, D0 हो सकता है, तो D सेक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन ना हो. ठीक, यदि है तो 1 to 10, उसके आगे नहीं. क्लियर? अब देखें तो इनके थोड़ा से एप्लीकेशंस देख लेते हैं. उससे पहले कि आगे चलें, ठीक है, हम लोग यहाँ स्मॉल एल की पॉसिबल वैल्यूज देख लेते हैं. यू नो -L2 प्लस एल की वैल्यू कितनी थी? 1. ठीक, सॉरी, एल की वैल्यू 0 है तो 0. दे आर 1 है, सो -1 0 प्लस 1. देयर मे बी आल्सो +L2 -L. दे आर 2 है, +2 +1 0 1 और 2, ये +1. In the same way, there L is equal to 3, so +3 +2 +1 0. So माइनस से स्टार्ट कर रहे हैं. -2 -1 0 +1 +2 -3 -2 -1 0 +1 +2 and +3. क्लियर? अब जरा ध्यान से देखें, हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर्मूला. सपोज वी टेक एन डी ऑर्बिटल. डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 12 + 1. ठीक, दैट इज 2 into 2 + 1, दैट इज 5. मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मींस टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्मॉल m. अब बोलते कितनी मिल रही? 1 2 3 4 5. यानी यहाँ पर ये होगा डी ऑर्बिटल में. हम देखें यहाँ 5 डी ऑर्बिटल्स होंगे डी सेक्शन. What possible maximum number of electrons?
4l plus 2, that is 4 into, हम डी सबशन के लिए बात कर रहे हैं, फॉर डी सबशन, ठीक है। तो l वैल्यू 2 है, इट कम्स 10, that is d10। आपको मालूम है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के रह सकते हैं, ठीक। तो हर ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, one इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज स्पिन एंड one इलेक्ट्रॉन इन एंटी क्लॉकवाइज। पॉसिबल यही है, इससे अधिक कोई चांसेस नहीं। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स तक पॉसिबल। क्लियर? ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रॉन्स का और ऑर्बिटल्स का विद इन सबशन, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं होती है। इन द सेम वे यू कैन चेक फॉर द p सबशन, f सबशन एंड सो ऑन। नाउ अगेन number of electrons and orbitals in a shell. Shell means principal shell, इसको small n से डिनोट करते हैं, फिर प्रिंसिपल पार्ट करते हैं। वहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, उनको फाइंड करते हैं। आइए देखते हैं n प्रिंसिपल्स। First number, total orbitals, यानी total possible values of small m। इससे पहले हम लोग एक चीज और से देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो है total substance। वो कितनी थी, इक्वल टू स्मॉल m, and there टोटल ऑर्बिटल्स ये होते हैं n स्क्वायर। क्लियर? टोटल सबसेट मींस टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्मॉल l, द टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्मॉल l। n square total orbitals means total possible values of small m, that is magnetic quantum number। It is total possible values of small m, this magnetic quantum number। In the same way, maximum number of electrons, इन्हें ऑर्बिटल तो इतने होने ही होने, चाहे उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, खाली पड़ा हो, बट देयर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स शुड बी देयर n स्क्वायर। वैकेंट पड़ा उससे मतलब नहीं है। अब बात उठती है, व्हाट विल बी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 2n स्क्वायर, दैट इज maximum possible values of spin quantum number small s। इसको हम लोग एक टेबल से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। We have taken shell like K, L, M, N. Clear? What will be their principal quantum number? 1, 2, 3, 4. That is first shell, second shell, third shell. That is shell number.
पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L लिख लेते हैं 0 to n-1 क्लियर। कौन सा आपका होगा 0, यहाँ कितना होगा 0 1, there are 0 1 and 2, there are 0 0 1 2 and clear। How you denote these subshells? ये कौन सी आपकी होगी 1s, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। L equal to 0 for s and 1 represents first cell, that is s subshell of first cell. There will be 2s and 2p. 2s was 0, 2 means second shell S subshell, 2p means p subshell of second shell. There 3s 3p 3d, they are symbols 4s 4p 4d and 4f. Clear? This is they are total subshells. That is maximum number of small s, total possible values of small l. ये मैंने क्या बताया था आपको, किसके इक्वल होता है, इक्वल टू l, इक्वल टू n था ये आपकी वैल्यू। क्लियर? दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, सॉरी n, इक्वल टू स्मॉल n, इक्वल टू स्मॉल n। 1 था, they are 1, they are 2, they are 3। अब देखें, hence only 3 subshells S P D, hence 4 S P D F, hence only 2 S P, बिल्कुल correct। Now we go total orbitals। Equal to n square, n value is given 1, so 1 square, 2 square, 3 square, 4 square। The possible values of small m in a shell, their maximum electrons, what is the number, 2n square, put the value of n, you got 2, put the value 2, they are 8, if taken n is equal to 3, they are 18, and taken 4, they are 30। जैसा एक बार करेक्शन जांच कर लेते हैं इसकी। टेकन एल सबशेल, सपोज एन एल शेल, you know n is equal to 2, clear? There possible values कितनी है, 0 1 है, टोटल सबशेल्स। अब ये 4 ऑर्बिटल कैसे होंगे, आइए देखते हैं। एल की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 0 और 1। ये कौन सा था आपका 2s और ये 2 सबशेल, ठीक है। s सबशेल हैज ओनली 1 ऑर्बिटल, ये आपको बता चुका हूं, एंड p सबशेल हैज 3 ऑर्बिटल्स। अभी हम लोगों ने पीछे वाले
टेबल में देखा था ये बात। S subshell contain 1 orbital, P subshell contain 3 orbital, D subshell contain 5d orbital, and F subshell contains 7 f orbitals. तो n is equal to 2 में how many orbitals? 1, ठीक, यहाँ 3 orbitals होंगे। P सबशेल में आपके यहाँ पर टोटल देखें आप 3 ऑर्बिटल है यहाँ। तो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन L cell? 1, 2, 3, 4, and according to formula there are also 4. You know, maximum 2 electrons can exist in an orbital with opposite spin. इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। One will be clockwise, other will be anti-clockwise in this direction. The same condition occurs in each orbital, चाहे वो p का हो d का हो। ऑर्बिटल तो ऑर्बिटल, और किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। सेम कैटेगरी विल बी इन p orbitals. Maximum 2 electrons can exist. Clear? Now, in L shell, that is in second shell, there how many electrons are possible? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is 8. Maximum number of electrons. जो हमारा फॉर्मूला कह रहा है वो हमारा डिस्क्रिप्शन भी कह रहा है, एनालिसिस भी कह रहा है हमारा, यानी हम लोग सही चल रहा है। चलिए इस तरह से आप M शेल और N शेल के लिए भी वेरीफाई करें। Nodes and nodal plane. इसके बारे में बहुत डिटेल में जाकर के नहीं हम चल रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअली में किसी भी शेल में हमने बताया था आपको कि around the nucleus a vast area is present in an atom, in which there are many three-dimensional regions in which finding of इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम है, एंड दैट थ्री डायमेंशनल स्पेसेस आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर सबशेल बनाते हैं, सबशेल फिर मिलकर शेल बनाते हैं। तो ये शेल और सबशेल्स हैं हमारे पास में। ये जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल वाला रीजन है ये अबाउट 94% चलता है अराउंड द न्यूक्लियस, जहां पर ऑर्बिटल्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। अब शेल्स बनते हैं तो शेल्स में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पास जाने की पॉसिबिलिटी हमेशा 0 होती है, वहां से इलेक्ट्रॉन कभी नहीं पास करेगा। दैट्स रीजंस आर कॉल्ड नोड्स, और वहां से जो प्लेन गुजरेगा उसे नोडल प्लेन। There are regions present in a shell in which
probability of finding of electrons is 0, or known as nodes. Clear? And passing a plane from nodes in which electron density is 0. इसको ऑर्बिटल डेंसिटी भी कहते हैं, इसको आइजन स्क्वायर से इंडिकेट कर देते हैं. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ऑर्बिटल डेंसिटी is 0, called nodal plane. Clear? Now, their nodes are two types. First, the radial nodes. In a subshell, total radial nodes. Radial nodes are also called spherical units, are n minus L minus 1. N is the principal quantum number, L is the azimuthal quantum number. Total angular nodes equal to smaller, that is azimuthal quantum number, and total nodes दोनों को ऐड कर दीजिए प्लस L इक्वल टू n minus 1. Suppose, for example, in 3D subshell, what is the value of n? Is equal to 3. And what is the value of L? D के लिए आपको मालूम है कितना होता है 2. तो यहाँ पर रेडियल नोड्स कितने होंगे? You can find 3 minus 2 minus 1. ठीक, कितने आ रहे हैं तो काउंट कर लीजिए. ये 0 आ रहा है. एंगुलर नोड्स कितने होंगे? इक्वल टू L मिल रहा है, that is 2 मिल रहा है. Clear? Their total nodes कितना होगा? n minus 1, 3 minus 1, 2 मिल रहा है. दोनों का सम भी आपका 2 आ रहा है. बात रही शेप ऑफ ऑर्बिटल्स. ठीक, तो ध्यान दें, शेप के बारे में बात करते हैं. जो s ऑर्बिटल होते हैं ये स्फेरिकल होते हैं इन दिस, और p ऑर्बिटल डम्बस शेप्ड होते हैं इन दिस.
and d orbitals double dumbbell shaped हैं, that is in this way, and f orbitals आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्लियर? अब इन ऑर्बिटल्स का किसी भी शेल में ओरिएंटेशन क्या होगा, अरेंजमेंट क्या होगा, ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो।